السلام علیکم. میں عالیہ سارم برنی, وائس چیئرپرسن سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ. میری پیدائش کراچی کی ہے. میرے والد پاکستان ایئر فورس سے تعلق رکھتے تھے. پیدائش میری شفا ہاسپٹل کی ہے. اور جب میری پیدائش ہوئی تھی تو کیونکہ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے میرا تعلق ہے اور زمینیں جائیدادیں یہ سب میرے ددھیال میں تھیں. جب میری پیدائش کے وقت میری ماں کو پتہ چلا کہ ان کے ہاں دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے والد کو اطلاع نہیں دی. اور پاکستان ایئر فورس میں اطلاع تو شفا ہاسپٹل سے ہی پہنچ جاتی ہے. شفا ہاسپٹل میرے باپ کو جب اطلاع پہنچی تو انہوں نے میری ماں سے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. وہ میرے باپ کا ایک جملہ کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے جب میں بچی تھی, جوان ہوئی, میری ماں نے کئی دفعہ دہرایا. اور یہ میرے لیے ایک اتنی بڑی طاقت ہے کہ جب باپ اپنی بیٹی کو اون کرتا ہے تو بیٹی کو لگتا ہے اس کو دنیا کی سب سے زیادہ طاقت نصیب ہو گئی ہے. اس طرح سے کراچی ہی میں میری پرورش ہوئی, اسی شہر میں میں رہی. لیکن کیونکہ باپ پاکستان ایئر فورس میں تھے تو میں پاکستان ایئر فورس کی وجہ سے جگہ جگہ ہماری پوسٹنگز ہوتی رہیں اور ہم پورے پاکستان میں گھومتے رہے. آخری ملک, آخری جگہ جو باپ کے ساتھ میں نے دیکھی وہ سعودی عرب تھا. ہم ڈیپوٹیشن پہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے اور میرے والد وہیں پر انتقال کر گئے. پاکستان ایئر فورس نے ہمیں پوری دنیا دکھائی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان ایئر فورس کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے والد کے بعد بھی تربیت کی ہم سب بہن بھائیوں کی. سعودی عرب میں جب میرے والد کا انتقال ہوتا ہے میری عمر اس وقت صرف 12 سال ہے. 12 سال کی بچی جب اپنی گود میں اپنے باپ کا سر لے کر, جسم لے کر ہسپتال جاتی ہے اور راستے بھر یہ سوچتی جاتی ہے کہ ماں نے کہا تھا ابا دنیا سے چلے گئے, تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دنیا سے کیسے چلے گئے. اور میں پورے راستے یہ کہتی چلی گئی کہ ابا دنیا سے چلے گئے, ابا واپس آ جائیے. لیکن مجھے معلوم ہوا کہ جو ایک دفعہ اس دنیا سے جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا. ابا تو واپس نہیں آئے لیکن ایک جد و جہد ضرور شروع ہو گئی اور میرے والد کو فوجی اعزاز کے ساتھ واپس لایا گیا پاکستان. ان کو اس زمین پہ سپرد خاک کیا گیا. لیکن ہماری ایک داستان شروع ہو گئی. وہ داستان یہ تھی کہ ہم نے پھر کراچی میں ہماری رہائش تھی اور ہم پاکستان ایئر فورس کی طرف سے شار فیصل پر ہمیں ایک گھر دیا گیا. پاکستان ایئر فورس نے ہمیں کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم جب شار فیصل پہ موجود تھے تو اسکولنگ میری پی ایف سے ہوئی, میرا کالج پی ایف, اور پھر میں جامعہ کراچی گئی. الحمدللہ مجھے پاکستان ایئر فورس کے اسکول میں وہ سارے مواقع ملے جس سے میری شخصیت بنی. میرا مزاج ایسا تھا کہ تعلیم اپنی جگہ, اس پہ تو اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے مارکس, ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں رہی. لیکن میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتی تھی. مثال کے طور پہ ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے, اسپیچ ہے, کوئی کمپیئرنگ ہے, ٹیلنٹ شو ہے, بیت بازی ہے, یا ایون اسپورٹس ہے. ان سب چیزوں میں میں نے اپنا ایک رول پلے کیا اور مجھے بہت اچھی طرح سے گروم کیا جا رہا تھا. جب میں گروم ہو رہی تھی اس وقت تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کام مجھ سے لینا ہے. لیکن جب میں وہاں پہ پریفیکٹ ہوئی, جب میں وہاں پر ہاؤس کیپٹن بنی, جب میں وہاں ٹیم لیڈر بنتی تھی تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آہستہ آہستہ کن جگہوں کی طرف لے کر جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ سے ایسا رول مجھ سے لیا کہ میں نے سب لوگوں کو ساتھ رکھ کر آگے بڑھنا سیکھا, چاہے وہ میرے ہاؤس کا کام ہو, چاہے وہ میرے اسپورٹس کا کام ہو. اور الحمدللہ میں نے جہاں کہیں بھی قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں نصیب کی. اور میں نے اپنے اسکول کے لیے, کالج کے لیے, ایون یونیورسٹی کے لیے میں نے بہت کام کیا اور میرے پاس بہت سارے ایوارڈ, سرٹیفکیٹس, ٹرافیز میرے پاس موجود ہیں. آج وہ البم میں ایک اچھی یادوں کی طرح موجود ہیں, لیکن میرے اندر, میری روح میں, میرے کردار میں, دل اور دماغ میں وہ ساری چیزیں, وہ ساری اسناد اس طرح ہیں کہ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کی, اپنے والدین کی اور اپنے ان اساتذہ کی جنہوں نے سمجھا کہ عالیہ کے اندر اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے اور وہ صلاحیت کو ابھارنے میں اور ہمیں مکمل کرنے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. میرا تعلیمی کیریئر جو سٹارٹ ہوا وہ سارا پی ایف سکولز, پی ایف کالج اور پھر آخر میں جامعہ کراچی. میں نے کلاس 1 سے کو ایجوکیشن میں پڑھا ہے. میں نے ہمیشہ لڑکوں کے ساتھ ہم نے پڑھا, ہم نے کھیلا, ہمارا کمپٹیشن بہت ہوا کرتا تھا کیونکہ ہم ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے. لیکن مجھے کبھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ لڑکی اور لڑکا, اس طرح کی چیز میرے ذہن میں کبھی آئی نہیں جو میں آج کل سوسائٹی میں دیکھتی ہوں. مجھے ہمیشہ یہ معلوم تھا کہ یہ میرا کلاس فیلو ہے اور ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں.
لیکن آج کل کے ماحول میں دیکھتی ہوں کہ کو ایجوکیشن کو کبھی کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، کبھی کہا جاتا ہے لڑکیوں کو اکیلے نہیں پڑھایا جائے، الگ الگ طرح کے ہمارے پاس اب متس دیکھنے میں آتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جس بچی کو ماں باپ اون کرتے ہیں، گھر میں پرسکون ماحول ملتا ہے اور وہ ایک اچھے طریقے سے باہر نکلتی ہے، تو اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زمانہ کس طرح سے اس کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ زمانے میں عزت بنانا خود ہی جان لیتی ہے۔ ماں باپ کا دیا ہوا کانفیڈنس، اللہ کی دی ہوئی عزت اور ماں باپ کا دیا ہوا کانفیڈنس بچی کو اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنے پازیٹیو رول پلے کرے۔ میں نے جیسا بتایا کہ میں نے کلاس 1 سے لے کے اور پھر میں ماسٹرز تک میں نے ہمیشہ کو ایجوکیشن میں میری تعلیم رہی، میں نے بہت مقابلے کیے، اور مقابلوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہوتی تو ضرور ہے کہ ایک لڑکیوں کی ٹیم ہو جاتی ہے اور ایک لڑکوں کی ٹیم ہو جاتی ہے۔ تو جب کبھی بھی میں گئی ہوں اور مقابلہ لڑکوں سے کیا ہے تو مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ میرٹ پر آپ لڑکوں کو ہرا سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں، اور جب آپ میرٹ پر لڑکوں کو ہراتے ہیں تو آپ کا معاشرہ آپ کو بہت اچھی جگہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس کا مجھے لگتا ہے کہ آج تک یہ چیز میرے سامنے آئی ہے، آج بھی میں جس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ میں مجھے سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، لیکن مجھے کبھی آج تک ہیرسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ جو ایک حدود، جو ایک لمٹس میرے ماں باپ کی تھیں، جو سب سے پہلے اللہ کی تھیں، میرے ماں باپ کی تھیں اور میرے معاشرے کی تھیں، میں نے ان حدود کے ہمیشہ اندر رہ کر کام کیا ہے اور ان حدود نے مجھے ہمیشہ تحفظ دیا ہے۔ یوں ایک سفر طے کرتے کرتے ڈفرینٹ جگہوں پر، ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں، ایون پڑھائی کے کمپٹیشن میں بھی لڑکوں کو ہراتے ہراتے اپنے کلاس فیلوز کو، کزنز کو، پڑوسی جو ہمارے بیس پر سارے لڑکے ہوا کرتے تھے، فائنلی میں آنرز میں چلی گئی۔ بی ایس سی آنرز کیا، اس میں پوزیشن لی، پھر میں نے ایم ایس سی کیا اور میں نے ٹاپ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب مجھے گولڈ میڈل جیسی ایک، میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کیونکہ جب آپ کو کسی فیلڈ میں گولڈ میڈل ملتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک کمائی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہ کمائی ہمیشہ کے لیے میرے فخر کا باعث بنی ہے۔ لیکن اس سارے سفر میں اگر میں یہ سمجھوں تو ماں باپ کا کردار بہت رہا۔ باپ بے شک میرے بچپن میں چلے گئے تھے، لیکن باپ کا اون کرنا، باپ کی محبت اور باپ کا یہ کہنا یہ میری بیٹی ہے، اور میرا یہ کہنا کہ میں بابا کی بیٹی ہوں، مجھے زندگی بھر بہت سکون دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے۔ تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں عالیہ سالم جیسی بیٹی پیدا ہو، تو اس بیٹی کو کچھ نہیں چاہیے، صرف باپ کا کانفیڈنس چاہیے۔ یہ میڈلز جو تعلیمی میدان میں ہمیں ملتے ہیں، یہ کامیابیاں جو دنیا ہمیں دیتی ہے، یہ ہمارے لیے اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کانفیڈنس اگر دیں، ہمارے ماں باپ ہمیں سہارا دیں، وہ ہم میں اور بیٹوں میں تفریق نہ کریں، جو کہ میرے والد نے کیا۔ جب ہم ڈیپوٹیشن پہ سعودی عرب گئے تھے تو اس زمانے میں یا ایون آج بھی ڈیپوٹیشن میں جو بھی ارننگ ہوتی ہے کسی بھی آفیسر کی، وہ ارننگ زندگی بھر اس کے ساتھ چلتی ہے، وہ بچت زندگی بھر اس کے ساتھ چلتی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ آفیسرز بچوں کو یا اپنی بیٹیوں کو پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم حاصل کر لیں، باہر وہ اپنے بیٹوں کو لے جاتے ہیں یا دونوں اولادوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے والد نے بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کو ساتھ لے کر گئے، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ تعلیم جتنی بھی مہنگی تھی، جتنی بھی مشکل تھی، میرے والد نے مجھے دلوائی۔ ان کے لیے پیسہ قیمتی نہیں تھا، ان کے لیے میری تعلیم قیمتی تھی، اور ان کے لیے یہ بات قیمتی تھی کہ میری بیٹیاں، میرے بیٹے میرے ساتھ رہیں۔ میرے ابا جب ذکر کیا کرتے تھے تو پہلے بیٹی اور پھر بیٹے کا ذکر کرتے تھے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری اس جد و جہد میں جو ایک بہت بڑا کردار ہے، میرے باپ کا کردار ہے، جو اس دنیا سے جانے سے پہلے مجھے تیار کر گیا تھا کہ دنیا کے جتنے مسئلے مسائل ہوں گے میں ان کو دیکھ سکوں، میں ان سے مقابلہ کر سکوں، اور ابا کے جانے کے بعد اپنی ماں کا ساتھ دیکھ سکوں، اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دے سکوں، ایک جگہ کھڑی ہو سکوں، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکوں، اور دنیا کو یہ بتا سکتی ہوں کہ بیٹی بیٹے ہی سے زیادہ قیمتی ہے، بیٹا اور بیٹی میں تفریق نہ کیجیے، اور ان دونوں کو مکمل اور برابر کے مواقع دیجیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور اپنے آپ کو بہتر انسان ثابت کر سکیں۔ زندگی کا سفر شروع ہوا
माँ की गोद में, बाप की पनाह में, और ये सफ़र होते 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 सारिम साहब के पास पहुँच गया। जब सारिम साहब ने मुझे मुंतखब किया, सारिम साहब की वालदा मेरी खाला हैं, मैं उन्हीं की गोद में पैदा होकर आई थी और उसी घर में मैं रुखसत होकर आ गई, उन्हीं की गोद में मैं दुल्हन बनकर आ गई। जिस घर में मेरी पैदाइश हुई थी, शिफा से मेरी माँ जिस कमरे में मुझे लेकर आई थी, उसी कमरे में मैं रुखसत होकर आ गई। और आज मेरी इतनी उम्र हो जाने के बावजूद मैं आज भी सारिम साहब की दुल्हन के रूप में उसी कमरे में मौजूद हूँ। मेरी वालदा ने सारिम साहब का इंतखाब किया जिस पे मुझे फ़ख्र है। मैंने बेशक पूरी ज़िंदगी लड़कों के साथ पढ़ा भी है और लड़कों के साथ पढ़ाया भी है, क्योंकि मैं हमेशा तालीम के शोबे से वाबस्ता रही। लेकिन मेरे ज़िंदगी का कौन साथी होगा, मैं किसके साथ चलूँगी, ये इंतखाब मेरी माँ का था, मेरी खाला का था। और मैं आज इतनी खुश हूँ कि उन्होंने मेरे लिए एक बेहतरीन जीवन साथी का इंतखाब किया। आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी दीवी तरबियत और उन दोनों की दीवी ताकत मेरे साथ मौजूद है। मेरा साथ इस तरह से औरतों ने दिया, उन औरतों में दो नाम बतौर ख़ास हैं, माँ और मेरी मदर इन लॉ। उसके बाद मेरी नंदे, मेरी बहन, हम सब शामिल हैं। लोग कहते हैं कि औरतें काम नहीं कर सकती, मैं तो कहती हूँ औरत कामयाब ही तब होती है जब उसके पीछे दूसरी औरत खड़ी हो जाती है। मैंने शौहर की ज़िंदगी में आने के बाद सारिम साहब को जॉब्स पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि औरत को घरदारी करना चाहिए, और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि औरत की ज़िंदगी का सफ़र उसके घर से शुरू होता है। लेकिन क्या कहने, अल्लाह की करम नवाजियों के क्या कहने कि अल्लाह ताला जब आपसे कोई काम लेना चाहता है तो आपके जीवन साथी के दिल में भी बात डाल देता है। मेरा कमरा तीसरे महीने शेल्टर होम बन गया था। जब जयंती नामी एक लड़की वहाँ पर आई थी, और वो क्योंकि हमारे मुल्क की नहीं थी और हमने अपने मुल्क का एक बहुत बेहतरीन इमेज देना था, तो हमारा शेल्टर होम बहुत खूबसूरत नहीं था। खूबसूरत इन अ सेंस कि आपको मालूम है जब बाहर से कोई मेहमान आता है तो हम अपने घर को कितना सजाते हैं। जब जयंती आई थी तो हमारे इदारे की कोशिश यही थी कि उसको अच्छी जगह रखा जाए। तो एक दुल्हन जो 3 महीने की दुल्हन थी, उसने उसको कमरा दिया। सारिम साहब बाहर थे और मैं जयंती के साथ उस कमरे में रहती थी, और मैं जयंती से बातें किया करती थी। कौन सी बातें? ये बातें कि वो भी एक लड़की थी, जब वो इस मुल्क में आई उसको कैसे खौफ महसूस हुआ, अब वो कैसा महसूस करती है। मैंने जो उसके साथ अपना कमरा शेयर किया, यानी एक औरत ने अपना कमरा दूसरी औरत के साथ शेयर किया, तो उसको कैसा लगता है। वो कौन सी दुआएं हैं जो जयंती ने मुझे देनी शुरू की। ये वो वक्त था जब मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने चुन लिया था कि अब मेरा एक और सफ़र शुरू होगा, माँ की गोद से लेके दूसरी माँओं को अपनी गोद में रखने का सफ़र, बच्चों को अपनी गोद में रखने का सफ़र। जब जयंती ने मुझे दुआएं दी तो उन दुआओं ने तो मुझे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया। मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि जो एक बड़ी बैलेंस ज़िंदगी पाकिस्तान एयरफोर्स की मैं गुजार कर आई हूँ वो अपनी जगह है, लेकिन असल ज़िंदगी तो ये है, ये मुश्किल की ज़िंदगी, ये मुश्किलात में दूसरों की मदद करने की ज़िंदगी। मैंने बहुत कुछ सीखा उस जयंती से, और उसकी दुआओं से मैंने ये सीखा कि मुझे अब इस काम में अपना अमली कदम रख देना चाहिए। शुक्रिया अदा करती हूँ सारिम साहब को, जिन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि मैं उनके इस सफ़र में शामिल हो जाऊँ। ये सफ़र चलता रहा। एक जयंती नहीं, मेरे पास एक बुजुर्ग खातून आई, उन्होंने भी मुझसे कमरा शेयर किया। एक आपको मालूम है हमारे मुल्क में माशी मसाइल हैं, और जो काम हम कर रहे हैं उसमें तो मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन अल्लाह का कितना करम एहसान है कि अल्लाह ने मुझे खुला दिल दिया। मैंने उस कोनी लुई को भी अपने ही कमरे में रखा। वो एक बूढ़ी खातून थी और बहुत ज़्यादा तकालीफ में मुब्तला थी, उनकी किडनीज़ भी फेल थी, और ये दोनों वक्तों में जब ये मेरे पास थी, अल्लाह ताला ने मेरी कोख में एक नए वजूद को भी रखा हुआ था। मेरी दोनों औलादें उस वक्त इस दुनिया में आई जब उन्होंने एक दफ़ा एक जवान औरत की और एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत की दुआएं समेटी। क्योंकि जिस तरह से मैं कोनी लुई को संभालती थी और उसकी मदद करती थी, वो वक्त भी मुझे याद है, और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दौर था वो, और बेहतरीन वक्त था। होते होते फिर हालात यहाँ तक हो गए कि पूरा शेल्टर होम अल्लाह ताला ने मेरे हवाले कर दिया। और फिर वही कहूँगी कि सारिम साहब की जो मजबूती है, उनकी मजबूती से जो मैंने ये सारा काम किया है, वो एक बेहतरीन चीज़ थी। क्योंकि अगर एक मर्द की मजबूती आपके साथ ना हो, और मर्द भी वो जो आपका महरम रिश्ता हो, तो औरत ज़िंदगी में कई जगहों पर उसको ये सोचकर चुप हो जाना पड़ता है कि क्या माशरा हमें इज्जत से आगे बढ़ने देगा, कहीं हमें हैरेसमेंट का सामना तो नहीं होगा। माशरा औरत के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन जब उस औरत के साथ उसकी फैमिली खड़ी होती है, उसकी माँ खड़ी हो जाए, उसका बाप खड़ा हो जाए, शौहर भाई बेटा खड़ा हो जाए,
फैमिली सिस्टम जब हमारा स्ट्रांग हो जाता है, फिर हम दुनिया को बहुत आसानी से पता कर लेते हैं। यूं एक सफर चलते चलते, कमरे से वो सफर चलते चलते पूरे शेल्टर होम पर आ गया। ये जो काम मैंने शुरू किया है, इसमें अगर मैं ये कहूँ कि मुश्किलात नहीं आती तो ये एक गलत बात होगी। ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। पाकिस्तान जैसे माशरे में गो कि हमारे पास पैसा देने वाले लोग बहुत हैं, हमारे पास चैरिटी बहुत जमा होती है, लेकिन हमारे पास पता नहीं ऐसा क्यों हो गया कि हम इज़्ज़त देने में बहुत ज़्यादा कंजूस हो गए। और जब हमें इज़्ज़त औरत को देनी पड़ती है तो हम और ज़्यादा सोच कर इज़्ज़त देते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम हर औरत को इज़्ज़त दे दें। मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद मैं औरतों के लिए ज़्यादा काम करती हूँ, जबकि मेरा मानना ये है कि मैं औरतों के लिए नहीं, मैं मर्दों के लिए भी काम करती हूँ। वजह, अगर किसी घर की औरत, बहू, बेटी, माँ घर से निकल जाती है, निकाल दी जाती है, तो जिम्मेदारी तो उस घर के महरम मर्द की है, लेकिन वो मेरे पास शेल्टर होम में रहती है, मैं उसको रखती हूँ, प्यार करती हूँ, और खुशनसीब होती हैं वो माएँ जो वापस चली जाती हैं, बहनें जो वापस चली जाती हैं। लेकिन जब तक मेरे पास रहती है, मैं तो फ़राइज़ अदा कर रही हूँ मर्दों के। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हमारे पास मर्द इज़्ज़त देने में इतनी कंजूसी क्यों दिखाता है? अगर आप खुलकर औरत को इज़्ज़त दे देंगे तो आपके घर में ही रहेगी। मुझे मुश्किल होती है इस बात पे जब मैं कहती हूँ कि औरत को इज़्ज़त दो, तो मर्द या माशरा, एक मर्द नहीं, खुद दूसरी औरत भी जजमेंटल हो जाती है। वो सोचती है कि इसको इज़्ज़त क्यों दी जाए। और मेरी जो अचीवमेंट्स हैं, अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि वो बच्चा जिसको उठाकर कहीं फेंक दिया गया, ये सोच कर कि हमारे काम का नहीं है, जब वो मेरे पास से उनकी गोदों में जाता है, उनकी हाथों में जाता है, जहाँ उसकी ज़िंदगी बन जाती है, वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मेरी अचीवमेंट तो ये होती है कि जब मैं अभी पिछले दिनों बहुत शदीद बीमार हो गई थी, मुझे डेंगू हो गया, जिस दिन मैं 104, 105 बुखार में शेल्टर में थी और अपनी 2 बच्चियों की शादी ये सोच के कर रही थी कि आज रुखसती ना हुई तो पता नहीं कितने महीने आगे टल जाएगी, और जब वो बच्चियां रुखसत हुई तो वो मेरी अचीवमेंट थी। मैं बेशक वहां से अस्पताल चली गई थी सीधे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहां से जिंदा सलामत उन्हीं की दुआओं से वापस आ गई। मेरे पास वो माएँ जिनकी हड्डियां तोड़कर वालिदैन को अपने बच्चे ही निकाल देते हैं, जब उनके बच्चे उन्हें वापस ले जाते हैं काउंसलिंग के ज़रिए या समझाने के ज़रिए, तो वो मेरी अचीवमेंट होती है। मुश्किलात इसके बरक्स हैं, जब मेरे समझाने पर भी बच्चे माँ बाप को ना लेकर जाएं तो वो मेरे लिए एक मुश्किल काम है। जब मेरे समझाने पर भी, मेरे कहने पर भी और ये बताने पर भी कि सारिम बनी ट्रस्ट एक इदारा है, आप बच्चों को कचरे कुंडी में उधर मत फेंकिए, आप लाके हमारे हाथ में दे दिए, और फिर भी हम खबर सुनते हैं कि वो हाथ में नहीं देते, और हमें खबर आती है कि फलाना बच्चा वहाँ ख़त्म हो गया, फलाने की डेड बॉडी वहाँ से मिली, तो बहुत दुख होता है। ये मेरे लिए मुश्किलात के लम्हे होते हैं जब मेरे पास शेल्टर होम में लोग इस नीयत से आते हैं कि मेरे पास से उन्हें ख़वातीन सिर्फ घर में काम करने के लिए मिल जाए, वो इस नीयत से नहीं आते कि इनको अपने घर की बहू बना लें, बेटी बना लें। तो मुझे बहुत दुख होता है कि शेल्टर होम में अगर बेआसरा होने वाली बच्ची, जवान बच्ची आके रह जाती है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो आपकी चाकरी करेगी, बल्कि वो इसलिए होती है कि माशरा उसको इज्जत दे। मेरे लिए सबसे बड़ी इस वक्त जो मुश्किल है वो यही है कि मैं माशरे में औरत की इज्जत को कैसे हासिल करूं, और मुझे इस चैलेंज में औरतों से भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि कई दफ़ा जब मैं औरतों को ये कहती हूँ कि हमारे पास, औरत के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो इज्जत की ताकत है। हम आसमान तक जा सकते हैं लेकिन अपने किरदार को बुलंद रखकर, किरदार की बुलंदी के साथ, तो वहाँ औरतों के पास भी मुझे औरत कार्ड नजर आता है, मुझे औरतों के पास शॉर्टकट्स नजर आते हैं, मुझे औरतों के पास ये नजर आता है कि हम किसी भी जगह प्रमोशन के लिए अगर औरत होने के नाते हमें प्रमोशन मिल जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी में तो सबसे बड़ी बुराई है। हमें दुनिया से जो कुछ भी चाहिए मेरिट पर चाहिए, हमें जो कुछ चाहिए अपनी सलाहियतों पर चाहिए। हम क्यों अपने आप को इतना सस्ता और इतना अर्जा कर दें कि सिर्फ हमारे वजूद को ही देखा जाए? हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी रूह बहुत ताकत रखता है। ये चैलेंजेस हैं मेरे पास। एक चैलेंज वो है जो माशरा मुझे देता है, एक चैलेंज वो है जो मेरे मर्द हजरात मुझे देते हैं, और एक चैलेंज मुझे वो है जो खुद औरतें मुझे दे रही होती हैं। इस वक्त मैं चारों तरफ से इस तरह से घिरी हुई हूं कि मैं चौमुखी जंग लड़ रही हूं।
मुझे नहीं मालूम कहां से कौन सा नश्तर आता है। इतने केसेस में शेल्टर होम में डील करती हूं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि हम किस हद तक हम नीचे गिरेंगे। कौन कौन सा रिश्ता है जिसको मैंने पामाल होते नहीं देखा। मेरी जिद्दोजहद यही है कि मैं किसी भी रिश्ते को पामाल होते हुए नहीं देखूं, मैं हर चीज को, हर रिश्ते को उसकी जगह पर पहुंचा दूं। इसमें मुझे सब लोगों का ताउन दरकार है, इसमें मुझे अपने पूरे माशरे का ताउन दरकार है, क्योंकि हमारा माशरा सिर्फ किसी औरत से ही पनप सकता है, माँ से ही पनप सकता है। और औरतों के लिए तो मैं सिर्फ एक बात ये जानती हूँ कि उनके ऊपर अल्लाह ताला की एक खास मेहरबानी है, क्योंकि जब मैंने कलाम पाक को खोला और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि औरत का हामी और नासिर तो सबसे ज्यादा अल्लाह है, औरत को तो सबसे ज्यादा हुकूक अल्लाह ने दिए हैं। ये वो कौन सी औरत है जो मेरे काम में मुश्किल पैदा कर रही है? ये वो कौन सी औरत है जो औरत को इज्जत के 2-3 अलग अलग पहलू दिखा रही होती है? ये कौन सी औरत है जो शेल्टर होम से बात करना चाह रही है? ये कौन सी औरत है जो अपने घरों को आबाद नहीं रखना चाह रही? आम फहम में औरत अपने घर को नहीं तोड़ती, वो अपने घर को आबाद रखती है। लेकिन इस वक्त मेरे माशरे में जो मैं इस वक्त ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और चैलेंजेस मुझे सिर्फ मर्दों से या माशरे से नहीं है, चैलेंजेस मुझे औरतों से भी हैं। ताकत उन औरतों की मुझे मिलती है जो मेरे माइंड सेट की हैं, जो इसी तरह सोचती हैं कि इज्जत जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन हमारे सामने अपोजिशन उन औरतों की आती है जो ये समझती हैं कि दौलत ही जिंदगी का हुसूल है, शोहरत और नाम ही जिंदगी का हुसूल है, ये मिल जाए तो इज्जत आनी जानी चीज है। जबकि मेरा मानना यह है कि इज्जत वो वाहिद चीज है जो जिंदगी में एक दफा जाती है और फिर कभी नहीं आती। और दिल का सुकून अल्लाह ताला देता है और दिल की इज्जत अल्लाह ताला देता है, ये पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। एजाज़ात कितने मिले उसमें तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह का करम है कि सारिम बनी ट्रस्ट में जितनी भी शेल्फ्स बनाई गई जिसमें मुस्तकिल इजाफा किया गया और वो सारी शेल्फ्स बिल्कुल भर गई हैं। अब उसमें एजाज़ात रखने की गुंजाइश नहीं है। प्रेसिडेंशियल से लेकर और वंडर वुमेन सारे अवार्ड्स वहाँ मौजूद हैं। और अगर खड़े होकर देखा जाए तो काफ़ी टाइम लग जाता है कि क्या क्या मिला, किस किस वक्त मिला। अच्छा ज़रूर लगता है, इज्जत मिलना तो हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अवार्ड होते हैं जो दिल के अंदर होते हैं, जो हमने वहाँ भी लेकर जाने हैं। अगर मैं उन अवार्ड्स का जिक्र करूँ तो सबसे पहले जो एक अवार्ड मेरे दिल में है वो मेरी वालदा का है कि मेरी माँ ने अपनी हर अमानत मेरे पास रखवाई, अपनी हर कीमती चीज़ मेरे पास रखवाई। माँ को मालूम था शायद कि आने वाले वक्तों में आलिया ने पूरी दुनिया की अमानतें रखनी होंगी, इज्जतों की अमानतें, मुस्तकबिल की अमानतें। तो मेरी माँ ने मुझे चुना, अल्लाह के बाद मुझे बहुत इस बात की खुशी है। अवार्ड एक सबसे बड़ा मुझे मिला था और वो इतना बड़ा अवार्ड है कि मैं शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने आखिरत के लिए वो अवार्ड, वो सर्टिफिकेट रखा हुआ है। मेरी वालदा बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, डॉक्टर उन्हें घर नहीं जाने दे रहे थे और वो नहाने के लिए घर आना चाह रही थी। मैंने डॉक्टर्स को कहा, डॉक्टर साहब मेरी वालदा ने जब कह दिया कि उन्होंने घर आना है तो आप प्लीज़ कुछ भी कीजिए, इन्हें घर आने दें। मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके 2 घंटे के लिए माँ को घर लाती हूँ, घर लाकर उनको गुस्ल देती हूँ और जब गुस्ल के बाद मेरी माँ ने ये अल्फाज अदा किए थे कि आलिया मैंने तुम्हें अपना दूध बख्श दिया। वो इतना बड़ा सर्टिफिकेट है मेरे पास कि मुझे लगता है कि इस दुनिया से जाने के बाद वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मकरूज़ भी अपनी वालदा की थी। तो मुझे इस तरह का जो सर्टिफिकेट है ये मेरे लिए ख़ास है और दुनियावी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का सर्टिफिकेट मिला है, हर तरह से सराहा गया है। हमारे इदारे को, हमारी काविशों को लोगों ने सराहा है। मेरा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये भी होता है, कहीं पे खड़ी हूँ, कोई बूढ़ी सी औरत जिनसे चला भी ना जा रहा हो या कोई ऐसे मर्द जिनसे चला ना जा रहा हो, वो हमारे पास आए लाठी के सहारे या किसी बच्चे के सहारे और आकर सर पर हाथ रख दें या दुआ दे दें कि तुम जो काम कर रही हो अल्लाह उसको आसान कर दे। ये अवार्ड्स मुझे रोज़ की बुनियाद पर मिलते हैं और ये मेरे असल अवार्ड्स हैं। मेरे अवार्ड्स वो भी होते हैं जब मैं शेल्टर होम में कदम रखूं तो जो वीडियोस मेरी लोग देख रहे होते हैं, जाहिर है हर जगह से चैनल्स पर वो चीज़ें चल रही होती है, मैं शेल्टर पे कदम रखती हूँ। मेरे शेल्टर का
2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, ये वो बच्चा जिसने भी चलना सीखा है, वो भागते हुए आते हैं ये कह के आलिया मम्मा आ गई। कोई मेरा दामन पकड़ता है, कोई मेरा आंचल पकड़ता है, कोई मेरे मुंह पर प्यार करता है, तो मैं कहती हूँ ये हैं अवार्ड्स, ये हैं सर्टिफिकेट्स, और ये रोज की बुनियादों पर मुझे मिलते हैं। अगर काम करने का हौसला कोई मुझे देता है अल्लाह के बाद, तो वो बुजुर्गों की दुआएं और बच्चों का प्यार है। और ये अवार्ड्स एक दफ़ा, ये मज़ा हर एक को चखना चाहिए। वेलफेयर का काम ज़िंदगी में हर एक को करना चाहिए। ये वो काम है जो हमें अंदर से जगा देता है, ये वो काम है जो एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़ से हमें दूर कर देता है। ये वो काम है कि जिसको करने के बाद जब मैं घर जाती हूँ तो मैं सोती नहीं हूँ, बस आँख पहले ही बंद हो जाती है और बिस्तर पे शायद मैं बाद में जाती हूँ। लेकिन अल्लाह का करम एहसान है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं इतनी ताज़ा दम होती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता कि रात को मैं कितनी थकी हुई थी या मैंने शेल्टर पे कितने मुश्किल केसेस देखे थे। ये सारी चीज़ें एनर्जी देती हैं हमें। लोग पूछते हैं आप काम कैसे कर लेते हैं, मेरा एक ही जुमला होता है जो मैं हमेशा से बोलती हूँ, अच्छा लगता है, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह ही करवा लेता है, उसने चुन लिया, उसकी करम नवाजी है। बस वो हमें, जब तक हमारी आखिरी सांस मौजूद है, अल्लाह ने हमें इंसान के तौर पर पैदा किया है और अल्लाह हमें इंसान के तौर पर ही अपने पास वापस बुलाए। माशरे को तो यही पैगाम है मेरा कि औरत की इज्जत कीजिए और अपने महरम रिश्तों से मोहब्बत कीजिए। औरत के लिए मेरा पैगाम ये है कि हमारा असल सफ़र हमारे घर से शुरू होता है और हमारे घर पर ही ख़त्म होता है। हमारा असल सफ़र ये है कि हम सारी ज़िंदगी अपने महरम रिश्तों के साथ गुजारें, जिसमें बाप, भाई, शौहर और बेटा सबसे कीमती हैं। और हमारा यही फ़ख्र है कि हम इन्हीं के कांधों पर कब्र में जाएं, और हमारा यही फ़ख्र है कि कोई नामहरम हमें वहाँ से निकाल कर हमारी तज़लील ना कर सके। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि औरत का वजूद तो कब्र के अंदर भी महफूज नहीं है। हमारे माशरे में ये जो 2 तरह की औरतें जन्म ले रही हैं, एक वो जो हया मार्च की बात करती है और एक वो जो आज़ादी मार्च की बात करती है, मेरे हिसाब से हमारे लिए एक ही मार्च है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, जो अल्लाह ताला ने किताब में हमें दी है। हमें किसी तरह भी दुनिया के इन सारे पैगामात पर हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमारे लिए जो अल्लाह की दी हुई इज्जत है वो मुकम्मल इज्जत है। औरत जब पैदा हुई है तो वो बाइज्जत है और वो एक मुकम्मल इंसान है, लेकिन जब वो दुनिया का सफ़र तय करती है तो उसको देखना है कि क्या उसको खाली एक वजूद, एक डेकोरेशन पीस बन जाना है या उसको अपने आप को मनवाना है। एक बात तो तय है कि अगर औरत अपने आप को मनवाना चाहती है तो उसको बाकिरदार रहना पड़ेगा। हम तो उन लोगों को जन्म देते हैं जो दुनिया को चलाते हैं। अपने इस कॉन्फिडेंस को अपने दिल में रखिए, रास्ता तय कीजिए, सफ़र तय कीजिए, मंजिल बहुत करीब है। बस गुमराह ना होइएगा, दुनिया की चकाचौंध में वो चीज़ ना खो दीजिएगा जो हमने बहुत मुश्किल से हासिल की है, और वो चीज़ है हमारा किरदार, हमारे रिश्ते, हमारे महरम। हम दुनिया फतह करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन अपने रिश्तों को साथ लेकर चलेंगे, अपने महरम रिश्तों को साथ लेकर चलेंगे। इसी में हमारी बका है और इसी में दुनिया की बका है।